110. یہ جو آپ کے باہر یہ جو لگے ہوئے ہیں بورڈ لگے ہوئے ہیں جی دیکھیں اس میں آپ نے کان بھی لکھا ہوا ہے ناک بھی لکھا ہوا گلا بھی لکھا ہوا لکھا ہے لیکن کرتے کان کہیں ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ کیمرے بند کرو کیمرے بند کرو تو اتنے بہ کے میرے گل کرو جی کرنا. مجھے صرف اتنا بتائیں ایلوپیتھک آپ کے لیے انلیگل ہے غیر قانونی ہے نا؟ مجبوری ہے اب کیا کریں. ناظرین یہ اس وقت آپ لطیف ہاسپٹل دیکھ رہے ہیں. بند کر دیں یہ گل کہ کیمرے تو بند کر. ہمارے ڈرگ انسپیکٹر صاحب اندر گئے اور انہوں نے تالا لگا دیا باہر سے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایم بی بی ایس کیا ہوا؟ نہیں میری بیٹی نے ڈی فارمیسی کیا ہے. خواتین بیٹھی ہوئی تھے اندر اور آپ شٹر پھینک رہے تھے. میں کسی کی ڈیتھ ہو گیا میں جا رہا ہوں. آپ کو پتا ہے یہ جتنے بھی مریض آتے ہیں ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ. مجرم کون؟ عصمت دری سے قتل و غارت تک، ظلم کے پھندوں سے شرمناک دھندوں تک، ڈاکو راج کا، شہر میں پھیلے خوف و ہراس کا مجرم کون؟ محرومیوں کا، مایوسیوں کا، آہوں کا، سسکیوں کا مجرم کون؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مجرم کون اور میں ہوں عبد المنان. ناظرین یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے لیکن آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا آخری مجرم کی کھوج تک. نشاندہی آپ کریں گے، بے نقاب ہم کریں گے، ہمت آپ کریں گے اور آواز ہم بنیں گے. تو آئیے مل کر اس شہر کو مجرموں سے پاک کرتے ہیں اور آج سے یہ گنتی شروع کرتے ہیں. جس قوم کے افراد اپنے بچوں کی خرابی صحت کے باعث انہیں کسی مستند طبیب کی بجائے کسی تجربہ گاہ میں لے جاتے ہوں اور اسی قوم کے ارباب اختیار ایک چھینک آ جانے پر یورپ کے بڑے اسپتالوں میں پہنچ جاتے ہوں، اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے. کیا واقعی ہمارا معاشرہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا ہم دیکھنے کی اداکاری کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے گرد و نواح میں موجود انسانی زندگیوں کو مذاق بنا کر کھلواڑ کرنے والی یہ سفید کوٹوں میں ملبوس کالی بھیڑوں کا راج ہمیں نظر ہی نہیں آتا. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں فیصل آباد جیسے بڑے شہر میں موجود جعلی اور نااہل ڈاکٹروں کی. آج مجرم کون کی ٹیم درجنوں ایسے جعلی ڈاکٹروں کو بے نقاب کرے گی، وہ بھی ان کے ڈاکٹر نہ ہونے کے اعترافی بیان کی خفیہ ویڈیو کے ساتھ. آج ہم پاکستان کے تیسرے بڑے شہر فیصل آباد کے ان جعلی ڈاکٹروں کے چہرے سے پردہ ہٹائیں گے جن کے خلاف ہمارے پاس خفیہ ریکارڈنگز موجود ہیں. وہ ریکارڈنگز جو مجرم کون کی ٹیم نے انتہائی محنت اور اپنی جانیں داؤ پر لگا کر حاصل کی ہیں، جن میں یہ نام نہاد مسیحا انسانی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اپنے نااہل ہونے کا اعتراف بھی کریں گے. اب آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ اگر ایک پروگرام میں جعلی ڈاکٹرز کی تعداد یہ ہے تو در حقیقت شہر فیصل آباد کے گلی کوچوں میں کتنے ایسے جعل ساز ہوں گے جو اپنے ناموں کے ساتھ ڈاکٹر لگا کر مسیحائی جیسے مقدس پیشے کے منہ پر کالے دھبے کا باعث بن رہے ہوں گے. ہم بات کر رہے ہیں فیصل آباد جیسے بڑے شہر کی. پاکستان کے چھوٹے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں کی عوام کا تو اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ جہاں اپنے گلوں میں اسٹیتوسکوپ لٹکائے ہوئے یہ قاتل کھلے عام انسانی زندگی کے خاتمے کا باعث بنتے ہوں، وہاں کیسا نظام، کون سا قانون اور کیسا تحفظ. مجرم کون کی ٹیم نے کام کا آغاز کیا تو پلان یہ تھا کہ ٹیم کے تندرست ممبر مریض کی صورت میں ان جعلی ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے جن کے جعلی ہونے کی اطلاعات ہیں اور ان سے مناسب ٹریٹمنٹ کے لیے کہیں گے. ساتھ ہی ساتھ ہماری خفیہ ٹیم کے ممبران جعلی ڈاکٹرز سے ان کے متعلقہ ڈگری یعنی MBBS اور PMDC رجسٹریشن نمبر کے بارے میں سوال کریں گے. جعلی ڈاکٹر کے ساتھ ہونے والی تمام گفتگو ریکارڈ بھی کی جائے گی تاکہ چھاپ
छापे के वक्त मुतल्लिका इलाका के ड्रग इंस्पेक्टर को वो वीडियो बतौर सबूत दिखाई जा सके। इन डॉक्टर्स पर छापे मारने से पहले हमारे पास मुकम्मल सबूत होना लाजिम थे ताकि किसी MBBS डॉक्टर की साख मुतासिर न होने पाए। मुजिम कौन की टीम का मकसद मुआशरे से ऐसे जाली अफराद को बेनकाब करना है, न कि किसी शरीफ और इज्जतदार की पगड़ी उछालकर रेटिंग के बाजार में अपना नाम बुलंद करना। मुजिम कौन की टीम और महकमा सेहत के ड्रग इंस्पेक्टर्स ने सबसे पहले फैसलाबाद झंग बाजार में वाक़े डार क्लिनिक पर छापा मारा, जहां रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों मरीज कान, नाक और गले के इलाज के लिए आते हैं। लेकिन इस डॉक्टर बने हुए शख्स और इसके इलाज से पर्दा उस वक्त फाश हुआ जब मुजरिम कौन की खुफिया टीम ने इस डॉक्टर से इलाज के तरीकाकार पर सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये आप खुद देख लें। ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਵੀ ਕਰੀਦਾ, ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਵੀ ਕਰੀਦਾ, ਦੇਸੀ ਵੀ ਕਰੀਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਵੀ ਦੇਸੀ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਦੇਸੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਰੁਪਏ ਕੀ ਬਾਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਾਰਾ। ये नाम निहाद डॉक्टर एलोपैथिक, होम्योपैथिक या देसी इलाज की बजाय किसी चौथी तर्ज के नुस्खे से इलाज कर रहे थे जो इन्हें इनके वालिद मोहतरम ने सिखाया था। इस नुस्खे के तहत ये जाली डॉक्टर मुख्तलिफ एलोपैथिक और कई दूसरी चीजों को मिलाकर एक मलगूबा तैयार करते थे और छोटी बड़ी सुइयों और सलाखों के साथ कान में डालते थे, मरीज चाहे नौ मौलूद ही क्यों ना हो। मुजरिम कौन की टीम ने छापे के वक्त सवाल किया कि क्या आप नाक, कान और गले का इलाज करते हैं, तो ये मौसूफ इस बात से साफ इनकारी हो गए और कहा नाक और गले का इलाज तो बस वैसे ही लिखा हुआ है, मैं तो सिर्फ कान का इलाज करता हूँ। ये जो आपके बाहर ये जो लगे हुए हैं बोर्ड लगे हुए हैं, जी, आपने जी। देखे इसमें आपने कान भी लिखा हुआ है, नाक भी लिखा हुआ, गला भी लिखा हुआ है। लिखा है लेकिन करते कान का ही है। ये एक चौंका देने वाला इंकशाफ था कि फैसलाबाद का एक ऐसा क्लिनिक जहां बिला मुबालिगा सैकड़ों की तादाद में बेसहारा और मजबूर अफराद अपने इलाज के लिए आते हैं, वहां का तबीब अपने हाथ से किए जाने वाले इलाज से इनकारी था। वो दिखाएं जरा, वो क्या है? ये मैंने बेटा मेरे अपने यूज के लिए मैं नहीं। लगाता हूँ चेहरे पे। देखिए, मुझे एलर्जी है, डस्ट एलर्जी। ये आपने यूज के लिए आपने 4, 5, 6, 7 रखी हुई हैं। बेटा इसकी क्या यकीन जरूरत करें कि पड़ी? मेरे घर भी आप देख लेंगे 2-3 अभी भी बड़ी होंगी। क्यों? मतलब बेटा मैं लगाता हूँ चेहरे पे, देखिए, मुझे एलर्जी है। मेरी बहुत बात ज्यादा। सुने ना, मेरी बात सुने। अगर आप लगाते हैं तो कोई भी मरीज है वो अपने यूज के लिए एक आध रखता है, आपने 5-6 ये रखी हुई हैं। एक वो देखिएगा वो क्या पड़ा होगा, वो सिरप टाइप, वो सिरप सिरप टाइप भी मैं खुद पीता हूँ। नीचे नीचे नीचे। बेटा मेरे मैदे का मसला है, मैं खुद पीता हूँ। ईमानदारी की बात है, मैं खुद पीता हूँ। लेकिन जब मुजरिम कौन की टीम ने मुतल्लिका खुफिया वीडियो और वहां मौजूद एलोपैथिक अद्वियात ढूंढकर उनके सामने रखी तो इस जाली डॉक्टर के दिमाग की बत्ती गुल हो गई और तब उन्होंने अल्लाह रसूल की कसमों के सहारे से खुद को बचाने का मुसम्मम इरादा कर लिया। ड्रग कंट्रोलर मोहम्मद मोहसिन और खालिद मुस्तफा ने बताया कि इनके पास हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट मौजूद है जो ना जाने इन साहिब ने कैसे हासिल किया है, जिसकी बुनियाद पर हम इनका चालान बनाकर ड्रग कोर्ट में भेज रहे हैं ताकि इनका सर्टिफिकेट कैंसिल किया जा सके। इसी दौरान मुजरिम कौन की टीम को फोन पर कई ऐसे लोगों से बात करवाई गई जिन्होंने मुजरिम कौन की टीम को धमकियों से रोकने की सरतोड़ कोशिश की। तो क्या आप कौन है, आप इनके वाले? ठीक है, मैं समझ गया। वो किसी से नाजरीन इन्होंने बात करवाई है हमारी ताकि प्रेशराइज किया जा सके। और नहीं शाहिद साहब, आपको क्यों तारुफ की जरूरत क्यों पड़ी है आपको? लेकिन मुजरिम कौन की टीम के हर मेंबर ने छापे के लिए निकलते वक्त ये सोच लिया था कि मुझे है हुक्म अज़ां, ला इलाहा इल्लल्लाह, ना हम डरने वाले थे, ना हैं और ना हम डरेंगे।
फासले पर डॉक्टर तारिक सलीम के नाम से क्लिनिक चलाने वाला एक शख्स अपने क्लिनिक में मौजूद इंसानी सेहत का मजाक बना रहा था। अगर आप ऐसे डॉक्टर से अपना इलाज करवाते रहे हैं तो हमारे इस इंकशाफ को सुनने के बाद जरूर पशेमान होंगे, क्योंकि जब मुजरिम कौन की खुफिया टीम के मेंबर मरीज की सूरत में इस जाली डॉक्टर के पास पहुंचे तो उन्होंने बगैर तशखीस के इंजेक्शन भरा और हमारे नुमाइंदे को इंजेक्ट करने के लिए ले आए, जिस पर हमारे खुफिया मेंबर ने बताया कि मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया हुआ, जिस पर इस जाली डॉक्टर ने जवाब दिया कि तुम्हें बहुत तेज बुखार है और इंजेक्शन लगाना जरूरी है। अपनी खुफिया वीडियो का राज कायम रखने और इस डॉक्टर के फरार होने के खदशे के पेश नजर हमारे नुमाइंदे ने इंजेक्शन लगवा लिया, जिसे बाद में दोबारा MBBS डॉक्टर को चेक करवाया गया। जब मुजरिम कौन की टीम ड्रग इंस्पेक्टर के साथ इन साहिब के क्लिनिक पहुंचे तो आगे क्या हुआ खुद देखिए। पहले तो इन साहिब ने हम पर ऐसे चढ़ाई करना चाहिए जैसे हमने इनकी नेक नामी पर धब्बा लगाने की कोशिश की हो, लेकिन जैसे ही खुफिया वीडियो इन साहिब के सामने पेश की गई तो सब कुछ खुद ही उगलते गए और एक ऐसी दलील दी जो शायद आज के दौर में हर वो शख्स देता है जिसका दामन साफ ना हो। आप लोग कहते हैं कि सिर्फ MBBS डॉक्टर हो वो दवाई दे, ये पूरे इलाके में कोई है डॉक्टर MBBS? ये लोग किधर जाए, मरे ही है। इनके क्लिनिक से एलोपैथिक अद्वियात की बड़ी मिकदार भी मिली, साथ ही साथ इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस ही नहीं बल्कि आधे इस्तेमाल किए हुए इंजेक्शंस भी मिले। ड्रग कंट्रोलर मोहम्मद मोहसिन और ड्रग इंस्पेक्टर खालिद मुस्तफा के मुताबिक ये पूरा इंजेक्शन एक मरीज को लगाया जाता है। बेसिकली इंजेक्शन सिंगल पर्सन के लिए होता है, उसको यूज किया और इसको फेंक दिया जितना लगाना। तो ये लोग करते हैं हाफ लगा दिया एक पेशेंट को, हाफ दूसरे को। वो एक दिन भी पड़ा रह सकता है, वो एक महीना भी पड़ा रह सकता है, वो एक घंटा भी पड़ा रह सकता है। लेकिन ये साहिब आधा इंजेक्शन एक मरीज को तो बाकी आधा किसी दूसरे मरीज को लगाते थे। अगले मरीज के आने तक ये टूटा हुआ इंजेक्शन खुला पड़ा रहता है, चाहे अगला मरीज 4 घंटे बाद भी क्यों ना आए, जिससे हेपेटाइटिस और एड्स जैसे मूजी अमराज का फैलाव यकीनी तौर पर मुमकिन है। ड्रग इंस्पेक्टर ने तमाम गैर कानूनी अद्वियात को जब्त करने और इस क्लिनिक को फौरी तौर पर सील कर दिया। इसके बाद हमारी अगली मंजिल फैसलाबाद के इसी इलाके में वाक़े लतीफ अस्पताल था। जाली डॉक्टर तारिक सलीम के क्लिनिक से ये अस्पताल नुमा तारीख कैद खाना ज्यादा फासले पर न था। इस अस्पताल के बाहर आवेजा बोर्ड के मुताबिक अस्पताल के अंदर छोटे बड़े ऑपरेशंस, अल्ट्रासाउंड और डिलीवरी केसेस जैसे जानलेवा ऑपरेशंस भी इन्हीं जाली डॉक्टर्स की जानिब से किए जाते थे। जैसे ही मुजरिम कौन की टीम वहां पहुंची तो वहां के नाम निहाद डॉक्टर्स और अस्पताल का बाकी अमला सब कुछ वैसे ही छोड़कर फरार हो चुका था। हैंगर्स पर लटकी हुई ड्रिप्स और खुली पड़ी अद्वियात और अल्ट्रासाउंड मशीनें इस बात का सबूत थीं कि कुछ देर पहले यहाँ जो लोग मौजूद थे वो कतई तौर पर असल डॉक्टर्स न थे। ड्रग इंस्पेक्टर्स की टीम की इंस्पेक्शन के दौरान बालाई मंजिल से एक खातून आई जो बज़ाहिर बोखलाई हुई नजर आ रही थी, जिन्होंने आते ही हमारे कैमरामैन और माइक को पीछे हटाने की कोशिश शुरू कर दी। बंद कर देने करके कैमरे तो बंद कर। ये वाजे हो चुका था कि अस्पताल की इंतजामिया ने खुद को बचाने के लिए एक खातून का सहारा लिया था। नाजरीन, हमारी टीम इस बात को हमेशा यकीनी बनाएगी कि छापे के वक्त चादर और चार दीवारी के तकद्दुस का एहतराम किया जाए। हमारे सामने कोई अस्पताल नहीं बल्कि किसी काली गार का मंजर था। बालाई मंजिल से आने वाली इस खातून ने हमें बाहर निकालने की इंतहाई कोशिश की। इसी दौरान महकमा सेहत के एक ड्रग इंस्पेक्टर को कमरे के अंदर बंद कर दिया गया, जिसने दरवाजा पीट कर अपने अंदर होने की निशानदही करवाई। ये बात हमारे लिए किसी खतरे से कम न थी। इससे पहले के इदारा पुलिस की खिदमत हासिल करता, हमारी टीम पिछली जानिब के दरवाजे का ताला तोड़कर ड्रग इंस्पेक्टर को बाजियाब कराने में कामयाब हो गई। इस अस्पताल को सील करना हर सूरत लाजिम था, लेकिन ऐसा करना हमारे लिए मुमकिन न रहा, क्योंकि बालाई मंजिल पर रहने वाले घराने की आजादी को खत्म करने का हक हमारे पास हरगिज मौजूद न था। क्योंकि हमारी टीम दस्तूर पाकिस्तान 1973 में मौजूद बुनियादी इंसानी हुकूक के आर्टिकल 8 से 28 पर मुकम्मल यकीन रखती है और इसकी पासदारी भी करती है। लेकिन महकमा सेहत के हुक्काम ने इस अस्पताल की तफसीली रिपोर्ट ड्रग कोर्ट
और इदारे को जमा करवा दी थी, जिसके बाद यहाँ काम करने वाले जाली डॉक्टर्स और अमले को दबोचने के लिए टीम तश्कील दी जा चुकी थी। इसके बाद हमारा रुख फैसलाबाद के इलाके नूरपुर का अंदरूनी हिस्सा था। मंडी बाजार की गुंजानियत में मौजूद एक जाली डॉक्टर जो या तो नशे में धुत था या इतना बीमार के दवाइयों के इस्तेमाल की वजह से बोलने के अंदाज में नशे के असरात वाजे थे। अपनी होशो खिरत से मुबर्रा ये साहिब मरीजों को शिफा देने की कोशिश कर रहे थे। मुजरिम कौन की खुफिया टीम के सवाल पर कि क्या आप MBBS हैं, तो इन साहिब का जवाब क्या था, खुद देखिए। डॉक्टर साहब, आपने MBBS किया होगा? नहीं, MBBS नहीं किया होगा तो फिर आप डॉक्टर कैसे हैं? यहाँ पे आप कैसे बैठे हैं? मेरी बेटी ने डी फार्मासिस्ट किया है। मुजरिम कौन की टीम ड्रग कंट्रोलर के साथ इस क्लिनिक पर पहुंची तो ये साहिब सब कुछ देखकर हैरान रह गए। जब इनसे पूछा गया कि क्या वो MBBS हैं, तो उन्होंने बताया कि वो नहीं बल्कि उनकी बेटी होम्योपैथिक डॉक्टर है और मैं यहाँ मरीजों का इलाज नहीं करता। तब हमारी टीम ने खुफिया वीडियो उनके सामने रखी तो डॉक्टर साहिब बौखला गए और ऐसी बातें उगलने लगे जो हमारे मुआशरे में बसने वाले लोगों को सोचने पर मजबूर कर देंगी। इस क्लिनिक के दरो दीवार की हालत जार चीख चीख कर दुहाइयां दे रही थी कि ये जगह हजरत इंसान की जिंदगी नहीं बल्कि मौत का मरकज है। इस क्लिनिक नुमा कत्लगाह में अद्वियात ऐसे खुली पड़ी थी जैसे किसी बावर्ची खाने में मसाला जात। डॉक्टर की कुर्सी पर बराजमान इस मौत के सौदागर ने हमारे हर सवाल का ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर बिला शुबा आप भी अंगुश्ते बदंदा हो जाएंगे। किसी को देना हो तो आप दे देंगे? हाँ, दे दूंगा। आप कह रहे थे मैं तो नुस्खे के बगैर कोई नहीं नहीं, ये दे सकते हैं हम। वैसे ही? वैसे फ्री देते हैं। फ्री किसी को भी दे देते हैं आप? हाँ। तो बच्चा आ जाए उसको भी पकड़ा देंगे? हाँ, बच्चे को भी पकड़ा दो। क्या बात है, शहंशाह आदमी। साइन करते हैं। ड्रग कंट्रोलर की महकमाना कार्रवाई के तहत तमाम एलोपैथिक अद्वियात को जब्त करने के बाद इस क्लिनिक नुमा मौत के मरकज को सील कर दिया गया। यहाँ से निकलने के बाद हमारा रुख जालंधरी मार्केट में मौजूद मारूफ जाली डॉक्टर निसार की दुकान थी जो अरसा दराज से इंसानी जिंदगियों के साथ तजुर्बात में मसरूफ था। जब हमारी खुफिया टीम इनके पास आई थी तो इन साहिब ने वाज़ेह तौर पर बताया था कि वो MBBS डॉक्टर नहीं है बल्कि उनका दावा था कि जैसा इलाज वो करते हैं वैसा MBBS डॉक्टर्स भी नहीं कर सकते। तो आप MBBS? मैं पैरामेडिसिन कितने 2-3 MBBS की दिखाए ना, तो उन्होंने बोला थोड़े हम ऐसा काम करते हैं वो MBBS की जो कदम रह जाती है। यानी लाखों रुपया सर्फ 5 साल की मुसलसल इंतहाई मेहनत और हाउस जॉब के बाद आने वाले डॉक्टर्स इस जाली तबीब के आगे पानी भरते थे। अलमिया ये है कि हमारे मुआशरे में शरा खानदगी इस कदर गिर चुकी है जिसकी वजह से हमारा शऊर, सोच और समझबूझ इस बात का अंदाजा लगाने से कासिर है कि सही कौन है और गलत कौन। मुजरिम कौन की टीम ने महकमा सेहत की टीम के साथ छापा मारा और मौसूफ से दरियाफ्त किया कि क्या आप MBBS डॉक्टर हैं, तो जनाब ने क्या कहा खुद देखिए। आप कौन सी दवाइयाँ कौन सी दे रहे हैं यहाँ पे? एलोपैथिक दे रहे हैं? एलोपैथिक दे रहे हैं। MBBS नहीं है आप? नहीं। टीम को देखते ही जनाब को अपनी दुकानदारी के सर पर खतरे की तलवार लटकती हुई नजर आई तो अपना तारुफ करवाना शुरू किया। गवर्नमेंट जॉब की है। तो आपके पास MBBS नहीं है और ना ही पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, वो नहीं है आपके पास जी। और काम आप कर रहे हैं एलोपैथिक का? जी वो। अच्छा, आपको इस बात का पता है कि एलोपैथिक सिर्फ MBBS डॉक्टर ही कर सकते हैं? सर वो मैं गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी में सारी जिंदगी यही किया है। ड्रग कंट्रोलर मोहम्मद मोहसिन ने इनके बारे में इंकशाफ किया
कि निसार साहब बतौर डॉक्टर प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते, लेकिन फर्स्ट एड के हवाले से इनका केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिसकी वजह से इनके क्लिनिक को सील नहीं किया जा सकता, लेकिन तफसीली रिपोर्ट मुरतब करके ड्रग कोर्ट में जमा करवा दी जाएगी और एक नया चालान भी तश्कील दिया जाएगा। अद्वियात जब्त करने और नए चालान पर इस जाली डॉक्टर के दस्तखत लेते हुए हमें अपने कानूनी निजाम पर अफसोस भी हुआ कि ऐसे लोग जो एक मिनट भी मसीहाई की कुर्सी पर बैठने के काबिल न हैं, वो कानूनी फैसलों में ताखीर का फायदा उठाते हुए इंसानी जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। और अब हमारा हदफ नूरपुर में मौजूद डॉक्टर अजमत था। इंसानी जिंदगी को मौत के तख्ते पर चढ़ाने वाला ये जल्लाद खुद को डॉक्टर कहता भी था और इसी नाम से लेटर हेड भी बनवा रखे थे, जिन पर मरीजों के लिए अद्वियात के नुस्खे बनाए जाते थे। जैसे ही हमारी टीम ने डॉक्टर अजमत की दुकान पर छापा मारा तो वहाँ मौजूद मरीज ऐसे शशोपंज की कैफियत में नजर आए जैसे वो ये सोच रहे हों कि गलत कौन है और सही कौन। जब हमने वहाँ मौजूद एक शख्स से सवाल किया कि क्या आप डॉक्टर हैं, तो उसने जवाब दिया कि मैं डॉक्टर नहीं बल्कि उनका असिस्टेंट हूँ। निशान साहब डॉक्टर हैं? नहीं, मैं असिस्टेंट हूँ। तो डॉक्टर साहब काम गए हैं अभी, डॉक्टर अजमत। डॉक्टर साहब शहर से बाहर गए हैं। कुछ ही देर में इंसानियत को मजाक बनाने वाला डॉक्टर अजमत शायद दूसरे शहर से किसी तख्ते सुलेमानी पर अपनी दुकानदारी को बचाने के लिए पहुंच चुका था। मुजरिम कौन की टीम पर दबाव डालने के लिए इलाके के चेयरमैन और नाम निहाद मुअज्जज शख्सियात को बुलाने के अलावा दुकान के बाहर हमारी टीम पर हमले की गर्ज से एक बदमाश गिरोह की सूरत में लोग मौजूद थे, लेकिन डर का लफ्ज हमारी टीम की डिक्शनरी में मौजूद ही नहीं था। इसलिए हमने अपना काम जारी रखा। जब हमने इस धोखेबाज डॉक्टर नुमा दरिंदे से सवाल किया कि क्या आप MBBS हैं, तो उनका जवाब क्या था खुद देखिए। जी मैं लगा। अच्छा आप लगाते हैं। आपने क्या किया हुआ, एजुकेशन क्या आपकी? मेरी मैट्रिक। अच्छा आपने मैट्रिक किया हुआ और आप लोगों को इंजेक्शन लगाते हैं? जी सर। इस दुकान में मौजूद एलोपैथिक अद्वियात को अपने अंदर समेटे हुए एक काउंटर मौजूद था। जब हमने इस काउंटर का जायजा लिया तो हमारे लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि ये कोई दवाइयों का काउंटर नहीं बल्कि किसी गंदे कबाड़ खाने का हिस्सा है, जिसे देखकर किसी भी जी शऊर को घिन आ जाए। यहाँ आने वाले मरीजों को शिफा मिलना तो दूर, सेहतमंद अफराद भी संगीन बीमारियों की जद में आ सकते थे। यहाँ भी हमें धमकी आमेज कॉल्स आती रहीं, लेकिन अफसोस सद अफसोस मुआशरे के उन दुश्मनों पर, क्योंकि उस वक्त तक हमारी टीम अपना फर्ज अदा कर चुकी थी। फैसला आप करेंगे कि मुजरिम कौन। जाली डॉक्टर अजमत की दुकान से निकलने के बाद हमारा टारगेट डॉक्टर जाहिद था। मुजरिम कौन की टीम पहले ही इस इंसानी जान के दुश्मन के मुंह से इस बात का एतराफ करवा चुकी थी कि वो MBBS डॉक्टर नहीं है। आप MBBS? नहीं, MBBS फिर वो आप MBBS नहीं? MBBS आ गए। MBBS आगे हमें यही भेजा है कि MBBS के पास जाने, इस लाइन में, इसी लाइन में। नहीं MBBS नहीं, MBBS आ गए। तो आप MBBS नहीं, तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब हमारी टीम ने ड्रग कंट्रोलर के साथ मिलकर इस दुकान पर छापा मारा तो खुद को डॉक्टर कहने वाला ये शख्स हमारे आने से दम बखुद रह गया और फौरी तौर पर सब कुछ उगल दिया। यहाँ हमें तवील मज़ाहमत का सामना न करना पड़ा और इस जाहिद नामी शख्स की इंसानी सेहत के साथ मजाक की दुकानदारी का शटर डाउन कर दिया गया। वहाँ से निकलने के बाद जालंधरी मार्केट में मौजूद एक मेडिकल स्टोर में बैठा ये शख्स खुद को डॉक्टर कहलवाने की जिद में लोगों के इलाज में मसरूफ था। जब इस शख्स ने मुजरिम कौन की टीम को आते हुए देखा तो दुकान के अंदर एक मरीज खातून और बच्चे की मौजूदगी के बावजूद फौरी तौर पर दुकान का शटर गिराना शुरू कर दिया। मुजरिम कौन की टीम ने ऐसी सूरत हाल में इस शख्स को पकड़ने की गर्ज से दौड़ लगा दी और कामयाब रहे। हमारी खुफिया टीम पहले ही इस शख्स के मुंह से उगलवा चुकी थी कि वो MBBS डॉक्टर नहीं है। तब भी हमारी टीम ने वो खुफिया वीडियो जो इस शख्स की पहले ही बनाई जा चुकी थी इसके सामने रखी तो इस शख्स के हवास बाख्ता हो गए, जिसमें ये मरीजों को चेक कर रहे थे।
नहीं मैं MBBS नहीं मेरे को बड़ी MBBS पर तो बड़े भाई वो अफजाल साहब वो उधर बंदे हैं। जब इस मेडिकल स्टोर की तलाशी ली गई तो कोई खातिर खा कामयाबी न हुई, क्योंकि एलोपैथिक अद्वियात को बतौर मेडिकल स्टोर के रखा गया था। लेकिन सवाल ये था कि ये शख्स हमें देखकर भागा क्यों था। ड्रग कंट्रोलर ने मुकम्मल सबूतों की अदम मौजूदगी की वजह से इस शख्स की दुकान को सील या चालान करना मुनासिब ना समझा और आइंदा के लिए मोहतात रहने की तलकीन करते हुए मुजरिम कौन की टीम यहाँ से निकल गई। नाजरीन, मुजरिम कौन की टीम का हमेशा यही मकसद रहेगा कि वो फैसलाबाद में बसने वाले लोगों को न सिर्फ उनके हुकूक से मुतारफ करवाएं बल्कि उन्हें हक लेने का तरीका भी बताएं। आज के इस एपिसोड के बाद शायद ये जाली डॉक्टरी का धंधा मुस्तकिल तौर पर बंद ना हो, लेकिन मुजरिम कौन की टीम आपको बावर कराना चाहती है कि ऐसे जाली डॉक्टरों के हाथों में अपनी जिंदगियों को मत दें, क्योंकि ये जिस्म और ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है और इसमें खयानत आखिरत के रोज हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बन सकती है, क्योंकि बेशक हमें लौटकर एक दिन अपने रब की तरफ जाना है।